Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, welcome to JIB CIB Prep. So, guys, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 25 विच इज all about capital investment decision and term loan. Okay, so I hope आप लोग रेगुलर बेसिस पे इन सेशन को देख रहे होंगे, ठीक है. So now, we have almost 90 days in our hand for AFM subject. What should be your strategy and others that we have already discussed. Okay. So the crux is basically you have to go through the concept, first step, then unit wise MCQs, module wise mock test, revision, full length mock test. Okay, so we already done with the like module A and B. So now in module C also we have done with unit number 19, which is financial management and overview. 20th ratio analysis, 21 interest and annuities, 22 YTM, 23 forex arithmetic, 25 capital structure and cost of capital, 25 is capital investment decision. So today we are going to practice a number of MCQs in case studies based on this particular unit, right? So very important one, at least 2 to 3 marks questions which are generally expected from this particular one. So most of the time they generally ask question based on capital investment appraisals method. So we have NPV, payback period and IRR. So सबसे ज्यादा और इन तीनों में से भी NPV जो सबसे ज्यादा बार आपको पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट भी और साथ ही साथ आपके न्यूमेरिकल्स भी उसके ऊपर देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है. So what type of question you can basically expect from this particular unit, that we will discuss in detail. And if you'll watch the entire video or आप अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेंगे, आई विल मेक श्योर कि यू विल नॉट मिस एनी मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट एज वेल, राइट. So let's have a quick look about the unit number 25. So we have introduction, then we have discounted cash flow method for investment, non-discounted cash flow method for investment. So basically discounted method which generally include your आपका पे NPV and IRR, ठीक है. So payback period, then we have important point about the term loan, then we have deferred payment guarantee, difference between term loan and appraisal, term loan appraisal and project appraisal, infrastructure project, disbursement of term loan, syndication of loan, ठीक है. So these are the subtopics which are generally part of this particular one, ठीक है. So one by one we are going to discuss all the subtopics and with the help of different questions. But before coming to this particular unit, so you have to you need a clear cut clarity about the our previous unit, which was capital structure and cost of capital, okay. So today I'm going to start this particular session with first 2 or 3 questions will be based on your previous unit, okay. So because these two topics are kind of interlinked, if you know the capital structure well, what is weighted average cost of capital in all team, so अगर आपने वो वीडियो देख लिया होगा तो यहाँ पे कोई भी चैलेंज नहीं आएगा आपको, ठीक है. दूसरी तरफ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक द इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज वेल, राइट. सो 2 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करेंगे, देन हम लोग आपका सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे, ठीक है. सो व्हाट इज की अजम्पशन बिहाइंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है. सो क्या होता है आपका, इट इज जैसे हमने आपका डिस्कस भी किया था इसको, ठीक है. सो it is something linked with your capital structure or capital budgeting, okay. So let's say I gave you an example now. So company XYZ Limited, they are planning for their expansion and growth. Their budgeting is, let's say, about the 1,000 crores, okay. And they plan their structure, आपका equity is to debt ratio was suppose that 30 is to 70. That means 300 crore rupees they are going to raise through equity and 700 crore rupees they are going to raise through debt. So why debt portion is important here? So why we always find this debt portion at higher side, because as per the net income theory of David Durant, so if we have high debt, so it provide us financial leverage system. तो financial leverage हमें वहां पे मिलता है, we got the tax benefit और we maintain that degree of control as well, right. And trading on equity is the core concept of this particular one. तो ये सब चीजें हमने past session में discuss किए हैं, ठीक है.
So the firm maintain consistent debt to equity ratio over time. The cost of equity is always lower than no. Firm capital structure will change every year. No. The firm does not consider tax benefit on debt financing. The firm consider tax benefit on this particular one. Okay? So a firm maintain a constant debt to equity ratio over time आपका जो इसका correct answer होना चाहिए. ठीक है? Because like why we maintain this particular one, or why like what are the optimal capital structure ratios and also वो कहीं ना कहीं उन्हीं लॉजिक के साथ आपका ये बनता है. ठीक है. In capital budgeting, the concept sunk cost means, ठीक है, sunk cost refer to basically which is kind of मतलब like that we have before starting the project. ठीक है, so this is the cost. ठीक है, तो kind of we can say जैसे let's planning and all kind of things. ठीक है, they are not part of that particular project and we do not consider those particular one while we make the capital decision. ठीक है, so cost, fixed cost that must be recovered before the profit. No, costs that already have been incurred and cannot be recovered. ठीक है, the total cost of financing project minimum written. No, so B will be right answer. So cost is a past cost cannot be recovered and should not be considered in capital budgeting decision. Only relevant future costs should influence the investment decision while you make the capital investment decision. Next one, which of the following best describe the trade-off theory in capital structure decision? ठीक है, so trade-off theory आपका, ठीक है, so which is like a firm balance takes advantages of debt against the financial distress cost. Firm always prefer equity over debt. Capital structure decision do not affect the value. Company should aim 50-50 debt to equity ratio. No, ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? Firm balance the tax advantages of debt against the financial distress cost. ठीक है, so like जैसे मैंने आपको कल बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे ना कि like when we go with the debt portion, ठीक है, higher side of debt portion in our capital structure, so how it generally give advantages to companies, because whatever investors whatever interest we are paying to the investors, that we generally consider as an operating expense. ठीक है, तो हमने जो आपका जो भी आपका बेसिकली जो इंटरेस्ट आपका पे किया है कस्टमर को, दैट वी विल माइनस फ्रॉम आवर ईबिट, देन वी विल पे द कॉर्पोरेट टैक्सेस. तो इस तरीके से जो आपका बनता है. ठीक है, नेक्स्ट वन. So trade-off theory suggests that firm optimize capital structure by balancing tax benefit of debt, interest, tax shield against bankruptcy risk and financial distress. Okay, next one. So this type of question we discussed in our earlier session also. So weighted average cost of capital. You have to calculate weighted average cost of capital. So how we calculate weighted average cost of capital? So it is portion of debt into your cost of debt. So cost of debt divide by portion of equity. So portion of equity into cost of equity. ठीक है, so ये आपका फॉर्मूला होता है. ठीक है, so weighted average cost of weighted average portion of debt or weighted average portion of equity into cost of debt, cost of equity. ठीक है, so in this particular case अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सो हाउ विल रीच टू द कंक्लूजन. सो पोर्शन ऑफ डेट इज 0.50 इनटू कॉस्ट ऑफ डेट इज हाउ मच? कॉस्ट ऑफ डेट इज 6%. ठीक है, तो कितना है आपका, कितना हो जाएगा 3. ठीक है, एंड पोर्शन ऑफ इक्विटी 0.50 इनटू योर it is 10. ठीक है, तो it will become 5. ठीक है, so 5 and it will become 3. So your weighted average cost of capital is how much? 8%. So option D will be right answer for this particular one. ठीक है, तो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कल आपका प्रैक्टिस किए थे. Weighted average cost of capital, this सब टॉपिक is very 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 important. ठीक है, so एक ये क्वेश्चन आपका होगा, इसी में एड ऑन कैसे होंगे वो भी मैंने आपको बताया था. इफ कंपनी प्लानिंग टू चेंज their debt to equity ratio for let's say 70:30, they want to increase the debt portion by 70%. Okay, or like the new ratio is let's say 70:30, so debt to equity ratio. Okay, so how it will impact the overall weighted average cost of capital? So weighted average cost of capital will come down. ऐसा ये जितने भी ऐसे दो पॉइंटर्स हैं,
सो यू नीड अ सॉलिड क्लियरिटी ऑन दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। अब कई बार ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसको एक दूसरे तरीके से भी आपका टेस्ट किया जा सकता है। दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट आपका जैसे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, या आपको कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। So based on this particular one, they are asking you to calculate cost of equity. So how you will calculate cost of equity? So it is आपका weighted average cost of capital minus, कैसे हम लोग निकालेंगे इसको, portion of debt. So portion of debt into cost of debt, ठीक है, cost of debt divide by your portion of equity, ठीक है। सो अगर आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व करेंगे, सो विल गेट टू नो, ठीक है। जैसे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हाउ मच, आपका 17.50 माइनस वी हैव वेटेड एवरेज सॉरी पोर्शन ऑफ आपका जो डेट पोर्शन ऑफ इक्विटी इज गिवन 0.50, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50% विल बी पोर्शन ऑफ डेट, ठीक है, इनटू योर कॉस्ट ऑफ डेट इज 12%, ठीक है, डिवाइड बाय योर आपका पोर्शन ऑफ इक्विटी इज 0.50। तो अगर आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, यू विल गेट टू नो द रिजल्ट ऑल्सो, ठीक है। यस, ठीक है, जैसे ये आपका है, सो इट केम अराउंड 0.23, सो परसेंटेज में आपका 23%, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, सेम लॉजिक, जस्ट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला इटसेल्फ, ठीक है। नाउ वी विल एंटर इनटू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डाउन साइड आई एम सेइंग 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, और अपर साइड इट कैन बी 3 मार्क्स 4 मार्क्स एज वेल, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो again going to help in the CIB ABFM examination, ठीक है। So the main difference between discounted and non-discounted cash flow method is that discounted methods ignore the profitability on project, no, consider the time value of money, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, are easier to calculate, no, only apply on short term investment, no, ठीक है। so आपका जो डिस्काउंटेड मेथड होते हैं, ठीक है, सो जैसे आपका डिस्काउंटेड मेथड लाइक एनपीवी सबसे ज्यादा जो यूज होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सो जैसे अगर आप एनपीवी से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, सो सपोज दैट वी हैव अ प्रोजेक्ट, ठीक है, एक प्रोजेक्ट आपका है, प्रोजेक्ट देयर इज अ एक्सवाईजी कंपनी, ठीक है, लेट्स से दे हैव अ प्रोजेक्ट, इनके पास एक प्रोजेक्ट आपका आता है, ठीक है, प्रोजेक्ट एक्स, ठीक है, दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट सपोज दैट 10 करोड़ रुपीज इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। सो शुड दे इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और नॉट, फॉर दैट वी विल यूज योर एनपीवी मेथड, ठीक है। सो हाउ एनपीवी मेथड विल हेल्प यू आउट इन दिस पर्टिकुलर केस, सो लेट्स से दिस प्रोजेक्ट इज फॉर 5 years, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट आपका है 5 year का है, ठीक है, एंड द रिटर्न इज लाइक दिस आउटफ्लो इज हाउ मच 10 करोड़ रुपीज, ठीक है, एंड इनफ्लो, अब इसमें जो इनफ्लो है ईयरली बेसिस के आपका, जैसे फर्स्ट ईयर लेट्स से इट इज 3 करोड़, ठीक है, सेकंड ईयर आपका जो हमें इनफ्लो मिल रहा है दैट इज सपोज दैट अगेन 3 करोड़, थर्ड ईयर आपका जो रिटर्न है दैट इज सपोज दैट 2 करोड़, एंड फोर्थ ईयर इट इज सपोज दैट 2 करोड़, एंड फिफ्थ ईयर अगेन इट इज लेट्स से 2 करोड़, ठीक है। सो दीज आर दी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, सो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ठीक है, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनफ्लो। सो व्हाइल वी विल मेक आवर डिसीजन कि हमें इस प्रोजेक्ट में, जैसे सिंपल सा मैं आपको समझाऊं कि अगर हम एक XYZ कंपनी, इफ दे इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट एक्स, दे हैव देयर इनिशियल आउटफ्लो इज 10 करोड़ रुपीज, ठीक है, आज वो अगर 10 करोड़ रुपए लगाते हैं, इन नेक्स्ट 5 years देयर रिटर्न विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जो फ्यूचर वैल्यू है आपका जो रिटर्न का, कि पहले साल उनको मिलेगा 3 करोड़, दूसरे साल 3 करोड़, तीसरे साल 2 करोड़, फिर 2 करोड़ 2 करोड़, दैट मीन्स the overall like future value they'll get it is 6 10 12 crores, ठीक है, आपका इनको कितना मिलेगा 12 करोड़, ठीक है। बट दिस इज नॉट द डिसीजन आपका, हम लोग यहाँ पे डिसीजन आपका इसके बेसिस पे नहीं लेंगे, ठीक है। सो व्हाइल यू अप्लाई एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, व्हाट यू विल डू, सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो, तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो, ठीक है। सो
अब देखो इससे क्या होगा, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इट जनरली यूज द आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू हैज अ मनी, कैसे हम लोग इसको बोलते हैं, जैसे आज का जो 1 रुपए है उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है 1 साल बाद के 1 रुपए से, ठीक है। ये लॉजिक हम लोग समझते हैं, ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ड्यू टू इन्फ्लेशन इन अदर फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। आज हमारे पास जैसे 1 रुपए है, इफ यू इन्वेस्ट इट सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू 2 रुपीज और 3 रुपीज एज पर आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड ऑल, ठीक है। या 100 रुपए है तो उससे हमने 150 रुपए बना दिया, बट 1 साल बाद आपका अगर 100 रुपए तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या है, आपका कम है, ठीक है। सो दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अदर थिंग्स, तो जो ये आउटफ्लो है ना, वी डू नॉट कंसीडर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। हम ये 12 करोड़ रुपए जो आपका आउटकम है after seeing this 12 crore rupees, will not make our investment decision if you are using NPV method. So what you have to do, you have to calculate present value of these particular outflow, ठीक है। Let's say if the present value, ठीक है, so how you will make your decision, if your present value of these particular outflow, that means your NPV is greater than 0 except the project, ठीक है। If your NPV is less than 0, reject the project. If your NPV is equal to 0, then you have to apply the IRR method, ठीक है। So that is the base of this particular one, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हैं, ठीक है। So we will practice number of question based on this, ठीक है। अभी दोबारा से समझ में आएगा आपको। Discounted cash flow method like NPV, IRR and PI account for time value of money, meaning they adjust future cash flow to reflect their present values. Non-discounted methods like payback period and ARR do not consider time value of money, making them less reliable for the long term decision, ठीक है। जैसे पेबैक हमारे उसमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक हैं, आपका एनपीवी, आईआरआर एंड पेबैक पीरियड, ठीक है। सो एनपीवी एंड आईआरआर दीज आर डिस्काउंट बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड वन, ठीक है। जैसे इसमें आपका डिस्काउंट रेट से कैलकुलेशन होता है, यहाँ पे हम लोग जैसे आपको क्वेश्चन में आपका जैसे डिस्काउंट रेट इज 5%, 10%, 9%, वो आपको दिया रहेगा। इन केस ऑफ पेबैक पीरियड व्हाट वी जनरली अज्यूम कि लेट्स से वी हैव इन्वेस्टेड 10 करोड़ रुपीज, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, हमने इसमें आपका 10 करोड़ रुपीज, हमने एक प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए आपका इन्वेस्ट किया है 5 साल के लिए, ठीक है। सो योर पेबैक पीरियड इन दिस पर्टिकुलर केस इज हाउ मच, 4 ईयर, ठीक है। 4 ईयर मैंने आपका पेबैक पीरियड क्यों बोला, क्योंकि एट द एंड ऑफ 4th ईयर वी आर रिकवरिंग द इनिशियल आउटफ्लो, ठीक है। जैसे हमने 10 करोड़ रुपए लगाया था, ये 10 करोड़ रुपए हमें कब मिल जा रहा है, आपका एट द एंड ऑफ 10th करोड़, ठीक है। आपका 3, 6, 8, 10, और ये जो इसके बाद की जो आउटकम्स होते हैं ना, जो आउटफ्लोज होते हैं, उनको ये आपका कंसीडर नहीं कर रहा होता, ठीक है। चलो आगे और बढ़ते हैं आराम से। A company is evaluating 2 investment project options, ठीक है। Project X has a payback period of 3 years, while the project Y has a net present value of 2 lakh. If company prioritize value creation, which project should be selected, ठीक है। तो कभी भी अगर हम लोग बात करते हैं दी बेस्ट मेथड फॉर दी प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, so your answer will be NPV. If your NPV is positive, so you will consider that particular one very first, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका ये जो NPV जो प्रोजेक्ट Y है, it has a net present value of 2 lakh rupees, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव में है, so we will consider project Y in this particular case, ठीक है। So project X because it has shorter payback period, project Y because it has a positive NPV. So option B will be right answer for this particular one. ऐसे छोटे-छोटे करके समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। So a positive NPV indicate that project Y add value to the firm. Payback period is useful for liquidity assessment but does not consider profitability beyond the recovery period, ठीक है। तो आपका रिकवरी तो जल्दी है, बट उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हो सकता है रिकवरी में 10 साल लग रहे हैं आपका, ठीक है, उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आप उस तरीके से नहीं जा पाएंगे, जैसे मैंने आपको यहां बताया। सो एनपीवी इज ग्रेटर देन 0, सो एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनपीवी इज इनएक्यूरेट, ठीक है। तो आपका एनपीवी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सो द टेम्पोरल वैल्यू ऑफ मनी is taken into consideration by NPV, ठीक है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो पहला बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द डिस्काउंटेड कैश फ्लो कनेक्टेड टू अ प्रोजेक्ट आर एडेड अप टू डिटरमाइन द नेट प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा सही है, ठीक है। जैसे आपका फ्यूचर वैल्यू हमारे पास थे 5 साल के, जैसे आपका 3 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, इस तरीके से, ठीक है। सॉरी 3 करोड़, 3 करोड़, देन 2 करोड़ आपका फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, तो उससे हम लोग नहीं करेंगे, हम उनका
प्रेजेंट वैल्यू, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लोज, सॉरी फ्यूचर इनफ्लोज, उनको कंसिडर करेंगे, ऐड करेंगे, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उससे आपका माइनस करेंगे, ठीक है, देन ओनली वी विल मेक द डिसीजन. ऑल ऑफ द कैश फ्लो कनेक्टेड टू अ प्रोजेक्ट आर कंसिडर्ड बाय द एनपीवी मेथड. बिल्कुल सही. द प्रोजेक्ट विद द लोवेस्ट प्रिडिक्टेड एनपीवी should be chosen when two competing project are under consideration. ठीक है, जैसे एक कंपनी है आपका, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है, रॉन्ग क्यों है आपका? ठीक है, देखो क्या हो रहा है, जैसे एक कंपनी है XYZ, दे हैव टू ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, और प्रोजेक्ट ए और बी. ठीक है, अब इनमें से लाइक दे वांट टू फंड वन प्रोजेक्ट, इन दोनों में से किसको आपका पिक किया जाए. ठीक है, लेट्स से इफ एनपीबी फॉर इसका जो एनपीबी है दैट इज सपोज दैट 2 एंड इसका एनपीबी इज सपोज दैट 7, तो कौन सा प्रोजेक्ट ऑप्ट होना चाहिए? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बी. व्हाई? बिकॉज इसका एनपीबी क्या है, ज्यादा है. ठीक है, ये क्या बोला है? लोवेस्ट. नो, हाईएस्ट. ठीक है, आपका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर आपका? बिकॉज इट इज इनएक्यूरेट अबाउट द एनपीबी, सो डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, so NPV value and investment are computed by the deducting investment initial outflow. Project anticipated with which has highest NPV, तो उसको आप क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. According to the net present value rule, when should a capital investment project be accepted? बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? दिस इज वेरी सिंपल वन नाउ. ठीक है, अब ये बहुत आसान है. ठीक है, आसानी से सबसे बन जाएगा. So if NPV is 0, no. अच्छा, okay. Only NPV is greater than the internal rate of return. NPV is positive, indicating value addition to the firm. ठीक है, so option देखो यहाँ पे ना जीरो भी है. ठीक है, पॉजिटिव तो ठीक है, मतलब ये बोला कि जीरो भी है तो भी आप अप्लाई करो, आप IRR यूज करोगे, तो C will be right answer for this particular one. ठीक है, so मैंने आपको क्या लिखा था? When NPV is greater than 0, then only accept that one. If it is less than 0, reject. और इफ इट इज आपका इक्वल टू, अप्लाई IRR फर्स्ट. ठीक है, तो उस तरीके से आपका ये रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ऑफ NPV मेथड इन कैपिटल बजटिंग? तो इट इंक्लूड टाइम वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर डिस्काउंटिंग the other factors. ठीक है, इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स. इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड. इजी नहीं है, अभी कोई आपके केस स्टडीज हम लोग करेंगे. इट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. ठीक है, दैट इज जनरली नोन एज डिस्काउंटिंग मेथड. ठीक है, सो इसीलिए हम उसको डिस्काउंटिंग मेथड बोलते हैं. ठीक है, सो एनपीवी मेथड डिस्काउंट फ्यूचर कैश फ्लोज of their present value, ensuring that investment decision account for the time value of money project risk. जैसे मैं आपको दोबारा से समझाता हूं, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट एक्स की बात करी थी. ठीक है, तो वहां पे इनफ्लो कैसे थे? फर्स्ट ईयर आपका इट वाज 3 करोड़. ठीक है, सेकंड ईयर इट वाज 3 करोड़, थर्ड ईयर आपका 2 करोड़, एंड फोर्थ ईयर इट इज आपका 2 करोड़, एंड फिफ्थ ईयर इट इज आपका 2 करोड़. ठीक है, तो टोटल इनफ्लो आपका जो फ्यूचर वैल्यू था वो कितना था? 12 करोड़. ठीक है, हमने पैसा कितना लगाया था? 10 करोड़ लगाया था. ठीक है, नॉर्मली देखने में ऐसा लग रहा है कि हमारा जो एनपीवी है वो, मतलब जो हमारा रिटर्न है वो पॉजिटिव है. While you calculate, ये तो क्या है? हमारे फ्यूचर वैल्यूज. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो. ठीक है, सो फ्यूचर इनफ्लो इसको आपको कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, सो हाउ यू विल कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वन? ठीक है, सो इट इज आपका बेसिकली द फॉर्मूला इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r की पावर n. ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसको, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका? इनफ्लो. ठीक है, इनफ्लो डिवाइड बाय 1 प्लस r की पावर n. ठीक है, इस तरीके से आप इसको करेंगे. और जैसे आपका फर्स्ट ईयर है, देन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इनिशियल सॉरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो हम कैसे निकालेंगे? इनफ्लो. लेट्स से फॉर फर्स्ट ईयर इनफ्लो इज 3 करोड़. ठीक है, सो आपका 3 करोड़ डिवाइड बाय 1 प्लस r, डिस्काउंट रेट इज सपोज दैट 1% की पावर 1. ठीक है, सेकंड ईयर प्लस आपका 3 करोड़. ठीक है, 1 प्लस r इज 0.10 की पावर 2. ठीक है, इस तरीके से आप थर्ड ईयर आपका 2 करोड़. ठीक है, 2 करोड़ 1 प्लस r इज आपका 0.10 की पावर 3. इस तरीके से सारा माइनस इनिशियल आपका इनफ्लो वाज 10 करोड़. तो अगर ये आपका पॉजिटिव माथ है देन ओनली यू विल एक्सेप्ट. ठीक है, तो दिस इज द वन. ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आपका द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर केस इज
जैसे इसका प्रेजेंट वैल्यू इज सपोज दैट 2.70 करोड़, ठीक है, इसका प्रेजेंट वैल्यू इज 2.50 करोड़ एंड इसका प्रेजेंट वैल्यू इज 2.10 करोड़, इसका प्रेजेंट वैल्यू इज 1.50 करोड़, इसका आपका 1 करोड़, ठीक है। ये आफ्टर कैलकुलेशन अज्यूम दिस नंबर। अब ये क्या हो गया आपका, ठीक है, देखो 1 करोड़, 2.50 करोड़, ठीक है, 5.60 करोड़, ठीक है, आपका 7.60 देन आपका 9 और 60, तो इट विल कम अराउंड 10 पॉइंट समथिंग, सो यू कैन इफ इट इज इन पॉजिटिव, इफ यू आर ग्रेटर देन 0 देन ओनली एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है। दिस इज द लॉजिक, ठीक है। अब ये लॉजिक को अभी हम क्वेश्चंस के रूप में भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अ मेजर लिमिटेशन ऑफ एनपीबी इज, तो यहाँ पे आपका लिमिटेशन क्या होता है, डिस्काउंट पीरियड, ठीक है। सो इट रिक्वायर अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट विच मे बी सब्जेक्टिव, ठीक है, ये आपका डिस्काउंट रेट होना बहुत जरूरी है। तो ये डिस्काउंट रेट का जो सिलेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू विल रीच टू द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। सो द की लिमिटेशन ऑफ एनपीबी इज दैट इट रिलाइज ऑन द एक्यूरेट डिस्काउंट रेट, ठीक है। जैसे हमने डिस्काउंट रेट आपका रखा सपोज दैट 10%, अब ये देखो अगर पॉजिटिव साइड, अगर एक्चुअल में डिस्काउंट रेट वाज सपोज दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड 7% था, तो आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा, ठीक है, दैट इज गुड। बट इफ एक्चुअली इट वाज 12%, तो 2% का सीधा सीधा इंपैक्ट आपका देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज द वन, ठीक है। सो विच इज ऑफन डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एंड मे वेरी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे आपका इन्फ्लेशन, ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 5% रहेगा, ड्यूरिंग दैट पीरियड इट वेंट टू 10% और 8% और इट कैन कम टू 2%, ये सारी चीजें, ठीक है। आपका इसके अलावा जो आपका अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है या फिर जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ऑल है, उनका कैलकुलेशन एस्टिमेशन सही होना चाहिए, ठीक है। इफ अ कंपनी इवैल्यूएट टू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे क्या है, जैसे अब पहला वाला केस क्या था, कंपनी जिसके पास पैसा था, दे वांट टू इन्वेस्ट इन वन प्रोजेक्ट बट दे हैव टू अल्टरनेट, ठीक है, कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट, दो ऑप्शन है कि इस पैसे को प्रोजेक्ट ए पे लगाया जाए या बी पे। हमने बी पे लगाया बिकॉज बी का जो आपका एनपीबी था वो क्या था, हायर था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी ने अपना, लेट्स से कंपनी हैव 1000 करोड़ टू इन्वेस्ट, ठीक है, अब इनके पास आपका 1000 करोड़ है, ठीक है। नाउ दे हैव अल्टरनेट्स, ऑब्वियसली इफ दे हैव 1000 करोड़ दे हैव मल्टीपल अल्टरनेट्स, ठीक है, एंड दे आर ओपन कि हम लोग हमारे बिजनेस के रेलिवेंसी में जो प्रोजेक्ट है उनमें हम लोग फंड करेंगे, ठीक है। सो सपोज दैट दे गॉट प्रोजेक्ट ए, बी एंड सी, ठीक है। अब ये जो सी है, जैसे ए है, इसका एनपीवी, सो इनका जो एनपीवी है, ठीक है, इसका ये माइनस में है, ठीक है, -2 सपोज दैट, इसका एनपीवी इज आपका +5, इसका एनपीवी इज +3, ठीक है। तो देखो अगर इन ये चाहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो दे कंपनी का जो प्रायोरिटी होगा, दिस विल बी कंपनी प्रायोरिटी, सबसे पहले वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज हाईएस्ट एनपीवी कंपनी। अब ये दूसरा प्रोजेक्ट, जैसे एक तो मार्कर बनाना था, ये आपका 5% है, दूसरा मार्कर के साथ साथ डिजिटल बोर्ड भी बनाना है, अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं विल गेट अगेन पॉजिटिव एनपीवी। तो कंपनी चाहे तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट में क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है बिकॉज both have positive NPV, but this we will ignore because it has negative, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, इसी के अराउंड है, ठीक है, विद एनपीवी ऑफ 5 लाख एंड 3,50,000, ठीक है, द करेक्ट डिसीजन क्या होगा। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो दो, अगर उनके पास पैसा है तो दोनों में इन्वेस्ट करो, दोनों से आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। चूज द प्रोजेक्ट विद द हाईएस्ट IRR, choose the project with the shorter payback, no, except both projects since they are independent and have a positive NPV, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि एक मार्कर बनाने वाला है और दूसरा आपका है डिजिटल बोर्ड बनाने वाला। वो बोला कि अगर आपके पास पैसा है, दोनों में पैसे लगाओ, दोनों से आपको रिटर्न क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी आपका समझ में आया, ठीक है। सो अगर म्यूचुअली होता, जैसे कि एक चीज को करने के, मार्कर बनाने के दो तरीके, एक हमारा जो पुराना प्लांट है उसको रिन्यूएट करते हैं, दूसरा एक नया प्लांट सेटअप करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो ज्यादा पॉजिटिव साइड दिखाएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना, जैसे ये मार्कर बनाने के ऊपर ये लोग अपना डिसीजन ले रहे होते हैं, एक उनके पास पुरानी फैक्ट्री है, ठीक है, ओल्ड फैक्ट्री, एक है आपका अगर हम न्यू फैक्ट्री बनाएं। अब देखो ओल्ड फैक्ट्री है तो यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट कम होगा, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट कम होगा बट इसका जो रनिंग कॉस्ट होगा वो ज्यादा होगा। इसमें इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगा बट आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो क्या होगा, कम होगा। तो इन पे हमने एनालिसिस किया,
एनालिसिस में दोनों पॉजिटिव आए, जिसका हायर, जैसे न्यू का हायर था तो हम नई फैक्ट्री बनाएंगे, ऐसे डिसीजन आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स, इनको हम लोग बोलते हैं, जो आपका कोर टॉपिक है अभी तक आपने जितनी भी कहानी मेरे से सुनी है। ठीक है, तो जिसमें तीन मेथड आपका, सबसे पहला एनपीवी। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की जो हमें फ्यूचर इनफ्लोज मिल रहे हैं उनका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, net present value method is a tool of for analyzing profitability of a particular project. It take into consideration the time value of money. The cash flow in future will be lesser than the cash flow today. जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो 1 रुपए है उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है कंपेयर टू 1 साल बाद के 1 रुपए के। ठीक है, सो और इवन यू कैन लाइक वी हैव लेट्स से like there is one concept called real income. ठीक है, so let's say कैसे समझोगे, we have invested 100 rupees at the rate of 7% per annum. ठीक है, so after 1 year our money become 107. ठीक है, so that means our return is 7 rupees. ठीक है, so this is your nominal income. ठीक है, this is called nominal income. But in case of real income, ठीक है, real income, how you calculate real income? It is interest माइनस इन्फ्लेशन। ठीक है, इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन। सो नाउ यू नो योर इंटरेस्ट इज 7, लेट्स से एवरेज इन्फ्लेशन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड वाज 5%, सो योर रियल इनकम इज व्हाट, 2 रुपीज। ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है कि आपका 100 रुपए ग्रो करके 107 रुपए हो गया, बट एक्चुअली में यू हैव अर्न 2 रुपीज। ये आपका अर्निंग नहीं है। ठीक है, दिस इज योर नॉमिनल अर्निंग। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस जो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करने के लिए। ठीक है, जैसे एनपीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, द सेम विद द सेम क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना, तो आपका किस तरीके से इसको आप समझोगे, जैसे कैश फ्लो फर्स्ट ईयर 3 करोड़। ठीक है, 1 प्लस आर की आर, लेट्स से डिस्काउंट रेट इज 10%। ठीक है, डिस्काउंट रेट अगर आपका 10% है, सो आपका आर इज 0.10। ठीक है, 0.10 की पावर 1 प्लस आपका सेकंड ईयर 3 करोड़, 1 प्लस 0.10 की पावर 2, थर्ड ईयर आपका 2 करोड़। ठीक है, 1 प्लस 0.10 की पावर 3, फिर सेम आपका फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, देन you will whatever the outcome of this particular one, you will minus initial investment that was 10 करोड़। इनके लिए फिगर क्या था, 2 करोड़ 1 प्लस आर 0.10 की पावर 4, 2 करोड़ 1 प्लस आर 0.10 की पावर 5। ठीक है, सो आफ्टर whatever the outcome you have to minus from this. If it is in positive, so you will accept, otherwise you will reject that particular one. ठीक है, R is rate of discount। ठीक है, R क्या है आपका, रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं, पहले इस पर आप दिमाग मत लगाइएगा, आई विल एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बहुत अच्छे से प्यार से सुनिए। ऐसे ही 7-8 क्वेश्चन आपका बैक टू बैक, कुछ क्वेश्चन में आपको आपका होमवर्क के लिए भी दे दूंगा, तो जहां से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। एबीसी कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज। ठीक है, दैट मीन्स आपका basically the outflow on this particular project is how much, 1 lakh rupees। ठीक है, this is the present value। ठीक है, so this is the present value, so present value of outflow is how much, 1 lakh rupees। ठीक है, next line, the project expected to generate cash flow of rupees 30,000 per year for next 5 years। ठीक है, तो this project is for 5 year, 5 साल का प्रोजेक्ट है। फर्स्ट ईयर आपका फ्यूचर वैल्यू इज हाउ मच, 30,000। सेकेंड ईयर अगेन 30,000, थर्ड ईयर अगेन 30,000। ठीक है, फोर्थ ईयर अगेन 30,000 एंड फिफ्थ ईयर अगेन 30,000। ठीक है, तो दिस इज द आपका फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, दिस इज द इनफ्लो, दिस इज जनरली योर इनफ्लो ऑफ फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, सो नाउ based on the discount rate। ठीक है, so now what you have to consider, you have to consider to the discount rate। ठीक है, so discount rate is how much, 10%। ठीक है, so now the question is what is NPV for the project, should the project undertaken or not। ठीक है, पहले आपको NPV कैलकुलेट करना है। इफ योर एनपीवी, अगर हमारा डिसीजन कैसे होगा, इफ आर एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट करेंगे, इफ आर एनपीवी इज लेस देन 0 वी विल रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर वन। तो दैट मीन्स
आपका सबसे बड़ा काम क्या है, ये कैलकुलेशन, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज, ठीक है, आपको ये आपका ये कैलकुलेशन करना होगा। एंड हाउ यू विल कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वन, वी नो द फॉर्मूला, ठीक है। सो इट इज इनफ्लो डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, जिस फॉर्मूला को आप यूज करेंगे फॉर एवरी ईयर्स, ठीक है। सो फर्स्ट आपका फर्स्ट ईयर का मतलब यू विल कैलकुलेट आपका जैसे आज का ये क्या है, एक साल के एंड में आपको सिंपल लॉजिक क्या है, दिस 1 लाख रुपीज वी आर स्पेंडिंग टूडे, आज हम लोग 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, ये 1 लाख रुपए लगाने के बाद एक साल के एंड में, ठीक है, दिस मनी यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। और ये पैसा आपको दूसरे साल के एंड में, ये पैसा तीसरे साल के एंड में, ठीक है, दिस यू विल गेट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, दिस यू विल गेट एट द एंड ऑफ fifth year. So the value of today's 30,000 is much higher than the value of this 5 years 30,000 down the line, ठीक है, because due to opportunity cost, due to your the basically inflation factors and all, so you have to discount it. Now I'll show you the explanation, ठीक है। So this is जहां से आपको ये और ज्यादा क्लियरिटी देगा, ठीक है। सो हाउ वी कैलकुलेटेड, सेम आपका 30,000 1 प्लस आर, ठीक है। सो फॉर्मूला इज आपका इनफ्लो, ठीक है, इनफ्लो 1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है। ऐसे ही आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर माइनस इनिशियल आउटफ्लो, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। सो द आउटकम वाज दिस। सो दिस इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो, ठीक है, फ्यूचर इनफ्लो, जो हमें ये आपका मतलब ये जो पैसा हमने लगाया था 30,000 जो हमें मिलना था एक साल के एंड में, उसका प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इन सबको हमने टोटल किया एंड इट केम टू, क्या नंबर आया आपका, 1,13,722, ठीक है। सो आपका 1,13,722 माइनस 1 लाख विच वॉज आर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, so 13,722, that means our NPV is in positive, so company should accept this particular project. समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया। अब ये जो कैलकुलेशंस है ना, अगर आपको ऐसा, व्हाट इज माय एक्सपीरियंस विद IIBF फ्रॉम लास्ट 4-5 इयर्स, अगर वो आपको क्वेश्चन देगा, सो अगर ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए देगा ये देगा, अदरवाइज वो डिस्काउंट फैक्टर देगा। जैसे डिस्काउंट फैक्टर कैसे, जैसे 1 रुपी 1 is equal to at the end of first year it is supposed at 0.980, सेकेंड ईयर आपका जो सेकेंड ईयर है इट इज मतलब 1 रुपए की वैल्यू एट दी, आज की जो वैल्यू है एक साल बाद की इतनी है, 2 साल में आपका 880 है, ठीक है, 3 साल में आपका जैसे 850 है, सॉरी 750 लेट्स से, ठीक है, फोर्थ ईयर में आपका ये है सपोज दैट 650 एंड आपका फिफ्थ ईयर में है सपोज दैट 550, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपका 0.980 इंटू 30,000, आपका पॉइंट दिस इंटू 30,000, ठीक है, इस तरीके से आपका मल्टीप्लाई करते रहोगे तो आप अपने कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। एक और क्वेश्चन आपका, चलो दोबारा से सुनो। XYZ wanted to expand its business and willing to this invest 10 lakh rupees, ठीक है, they want to invest 10 lakh rupees, so initial outflow, ठीक है, so present value of outflow is how much, 10 lakh rupees, 10 लाख रुपए आपका ये इन्वेस्ट करें, ठीक है, and the return, this project is basically for 5 year, again 5 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका 1 लाख, ठीक है, सेकेंड ईयर 2.5 लाख, थर्ड ईयर 3.5 लाख, फोर्थ ईयर 2,65,000 एंड फिफ्थ ईयर आपका 4,15,000, ठीक है, दीज आर द फ्यूचर वैल्यू, ये क्या है आपके फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनफ्लोज हैं, ठीक है। अब आपको बेसिकली व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट नेट डिस्काउंट रेट इज 9%, ठीक है, उसके हिसाब से आपका ये कैलकुलेशन, जैसे सेम फॉर्मूला में, ठीक है, जैसे आपका 1 लाख 1 प्लस 0.09 की पावर आपका 1, ठीक है, प्लस आपका सेकेंड ईयर आउटफ्लो इज दिस, ठीक है, 2.5 लाख 1 प्लस 0.09 की पावर 2, ठीक है, थर्ड ईयर आपका कितना था, थर्ड ईयर इज 3.5 लाख 3.50 लाख 1 प्लस 0.09 की पावर 3, ऐसे आप जाओगे इनिशियल इन्वेस्ट, फिर ऐसे ही फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का करोगे और इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज 10 लाख, ठीक है, जो भी आउटकम होगा दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं सेम आपका, सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, दिस इज आउटफ्लो आपका, तो फर्स्ट ईयर का मतलब
जो आज का 1 लाख रुपए एक साल के एंड में कितना हो जा रहा है, 91,743, ठीक है। 2 साल के एंड में हमें जो 2,50,000 मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, इतनी है। 3 साल के एंड में जो हमें आपका 3,50,000 मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू है ये। आपका 4 साल के एंड में 2,65,000 जो हमें मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू विच वी विल गेट एट द एंड ऑफ fifth year, 4,15,000, and the present value of this particular amount is this. So what you have to do, you have to add these particular figure minus your initial investment. If outcome is in positive, so you will accept, otherwise you will reject, ठीक है। तो जैसे हमारे केस में भी आपका पॉजिटिव है 29,010 एंड यू विल एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड, समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत होगा। एक बार आपने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, it will help you lifelong, ठीक है। So we'll do CAIB after that we'll go for CFP and other examination also, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका वहां पे ना, ये चीजें बहुत ज्यादा आपकी रहती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, रुपये की वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो अ प्रोजेक्ट इनिशियल इनफ्लो इज आपका 80,000, आउटफ्लो, ठीक है। सो बेसिकली वी आर इन्वेस्टिंग, हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 80,000 टूडे, ठीक है। सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। एंड आउटफ्लो आपका फ्यूचर आउटफ्लो, दीज आर द आउटफ्लो, ठीक है। सो विच वी विल गेट इन फ्यूचर, ठीक है। सो इट दीज आर द फ्यूचर, सॉरी, दीज आर द फ्यूचर वैल्यूज, ठीक है। ये हमारे क्या है, आपका फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। नाउ ओके, आई विल इरेज दिस वन, ठीक है। सो दीज आर द फ्यूचर वैल्यूज, ठीक है, विच यू विल गेट एट द एंड आफ्टर इन्वेस्टिंग हाउ मच, 80,000 रुपीज, ठीक है। डिस्काउंट रेट इज 12%। और सी, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। टेक द प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपी फॉर द ईयर 1 इज आपका 0.893, सेकेंड ईयर आपका इट इज दिस एंड थर्ड ईयर इट इज दिस, ठीक है। मैक्सिमम टाइम दे गिव यू दिस टाइप ऑफ थिंग, दैट मीन्स you do not have to make that calculation, ठीक है। that calculation, this is the kind of outflow of आपका inflow 1 plus r, ठीक है। so 1 plus r की power n, so they have already calculated this for all of you, like 1 rupee inflow, let's say if it is 1, so 1 divided by 1 plus r, discount rate is 12%, so it is how they calculated this, 1 plus 0.12 की power 1, ठीक है। for 2, second year 2, 3, 4, 5 ऐसा calculation. So in this particular situation what you have to do, only 30,000 into first year आपका 0.893, second year it is आपका 0.797, third year it is आपका 0.712, whatever the outcome, ठीक है, this will be your present value of these future inflows, and then whatever the outcome total, ठीक है, the total and minus the initial investment, ठीक है। so you will get your answer, ठीक है। तो सिंपल सा आपका कैलकुलेशंस, so this is the outcome, ठीक है। तो आउटकम है आपका investment was 80,000, we are getting this, so that means it is positive, we should accept this particular one, ठीक है दोस्तों। so एक आपका सेम सा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दिया गया है, so this is your homework question, ठीक है। so now this is your first homework question. आई होप ये सबको समझ में आए होंगे, ठीक है। सो ट्राई, जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सोच ली। अगर पेपर टफर साइड में आएगा, इग्नोर दिस वन, अभी आप मत देखिएगा इसको, ठीक है। तो अगर पेपर टफर साइड में आएगा, दिल डेफिनेटली इंक्लूड दिस 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। मतलब सोचो कि आप टू सॉल्व 2 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू डू 4 करेक्ट फॉर हाफ मार्क्स, एक क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा। एंड दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपको बहुत जगह आपका हेल्प करेगा, ठीक है। So please do answer these particular question into the comment section. So a project should be started if net present value is positive, ठीक है। अब ये तो आप लोग प्रो हो गए होंगे, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया, सॉरी दिस वाज अ रिपीट वन, ठीक है। सो जैसे आपके बुक के अंदर एक क्वेश्चन था, वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर वन आल्सो, ठीक है। सो कंसीडर अ फर्म वांट टू सेट अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और प्लांट, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ टॉय रिक्वायर्ड न्यू फैक्ट्री स्पेस एंड इक्विपमेंट, ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको कराया था ये वाला, ठीक है। ईदर द फर्म कैन कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री और दे कैन रीफिट द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। तो इनके पास ऑप्शन क्या है कि लाइक they want to start making a toy. For that they have 2 options, ठीक है। that means it's a kind of same type of project, ठीक है।
या तो उनके पास ऑप्शन है कि वो जो पुराना फैक्ट्री है उसको आपका रिनोवेट करें, दूसरा ऑप्शन क्या ढूंढ रहे हैं वो लोग कि अगर हम नया फैक्ट्री डाल दें, क्यों ना हम इसको एक नया फैक्ट्री बना लें, ठीक है। सो वाइल यू विल कंस्ट्रक्ट द न्यू फैक्ट्री, so we have two alternates. One is construction of new factory, another one is refit or rebuild the existing one. While you reconstruct the new factory, it will initially have high cost, but the production cost will be lower. Similarly, in case of if you renovate your existing one, initial cost will low, but that operating cost will be high due to old machineries and all, right? So now they have project A is your new machinery, project B is your old machinery or reconstruction and all. This is the outcome they have given. So project A आपका initial inflow for new factory, let's say it is 2000 crores and these are the return for 6 year 350 500 600 800 आपका, this is the your these are the future values. These are the 1 to 6 year, these are the future value of inflow. So what we have to do, factoring is 10%, so we will calculate the present value and this is the present value. Okay? That means the NPV is positive 564 in case while you कंस्ट्रक्ट और न्यू फैक्ट्री, ठीक है। अगर आप नई फैक्ट्री बनाते हो टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सो आपका एनपीवी है पॉजिटिव में। दूसरा, अगर हम आपका जो पुरानी फैक्ट्री है उसको रिनोवेट करते हैं, ठीक है, तो इनिशियल कॉस्ट इज लो कंपेयर टू दिस, आउटफ्लो इज दिस, ठीक है, ये आपका फ्यूचर इनफ्लोज है, ठीक है, सॉरी, एंड डिस्काउंट रेट 10%, द इनफ्लो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो स्टिल वी हैव पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पे भी क्या है आपका पॉजिटिव है। नाउ टेल मी विच प्रोजेक्ट यू विल ऑप्ट, ठीक है। अब देखो ये these are not kind of independent project, you have to make decision about project A or B. So what project you will opt, क्या करोगे आप बताओ जरा अपने दिमाग में, ठीक है। So we will go with project A. अब प्रोजेक्ट ए क्यों, दोनों ही पॉजिटिव में, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। अगर ये इंडिपेंडेंट होते और हमारे पास पैसा होता हम दोनों में लगाते, बिकॉज दोनों में से हमें आपका पॉजिटिव रिटर्न मिलने वाले हैं, बट दे आर काइंड ऑफ आपका alternates will opt option A, project A, construction of new toy manufacturing company. Reason, we have higher NPV in this case. NPV is positive in both the cases, but project A is giving us higher NPV. So that is the one. Understood? समझ में आया सबको? तो ये सेम कहानी आपका यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपना जो रिमेनिंग मेथड्स हैं, ठीक है, उन पे। सो विच कैपिटल बजटिंग मेथड अज्यूम दैट ऑल कैश फ्लो आर रीइन्वेस्टेड एट प्रोजेक्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर। सो इसको हम लोग क्या मेथड बोलते हैं, आईआरआर, ठीक है। तो जैसे हम लोग आपका जब एनपीवी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन योर एनपीवी इज जीरो वी गो फॉर आईआरआर, ठीक है। तो जहां पे जो डिस्काउंट रेट है और जो आईआरआर रेट है, ठीक है, इफ यूर उस रेट के हिसाब से भी जनरली मेक आर डिसीजन, ठीक है। So IRR for a project is discounted rate at which the NPV of the project is maximum. No, अगर NPV maximize होगा तो हम उसका फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगा। The present value of cash inflow equal to the initial investment. बिल्कुल ये हो सकता है। Present value of cash inflow is equal to initial investment, ठीक है। The payback period is minimized. The project has the highest accounting profit. No, ये क्यों होगा, इसका कहने का मतलब है your NPV is equal to zero. ये situation हो गई है, then you will apply that particular one, ठीक है। So IRR is the discount rate at which the NPV is equal to zero. This means present value of future cash inflows exactly match the initial investment, making IRR a break-even point, a break-even discount rate for the project. ठीक है। Which of the following is major limitation of IRR method? It does not consider the time value of money. It does basically, ठीक है। So discount rate पे ही ये काम होता है, ठीक है। It assume cash flow are reinvested at the IRR which may not be realistic. No, this is क्या हमें आपका limit, this is true, ठीक है, मतलब this is also like this is wrong, ठीक है। हमें क्या ढूंढना था, लिमिटेशंस आपका, ठीक है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट टर्म, नहीं, इट इग्नोर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इट अज्यूम कैश फ्लो आर इन्वेस्टेड एट द आईआरआर व्हिच मे नॉट बी, हाँ दिस बी विल बी राइट आंसर, सॉरी फॉर दिस वन, ठीक है। तो क्या होगा आपका, और की लिमिटेशन इज आईआरआर मेथड इज द अजम्पशन दैट कैश फ्लो आर री इन्वेस्टेड एट द आईआरआर इटसेल्फ, ठीक है।
so which may overstate project return. In reality, firm may reinvest cash flow at the cost of वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रादर देन दी आईआरआर. ठीक है, ये डिफरेंस आपका कि वहां पे एक फिक्स रेट जैसे 10%, बट यहाँ पे हम लोग आपका डब्ल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से आपका चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे. इफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैव डिफरेंट आईआरआर, विच डिसीजन शुड बी फॉलोड. ठीक है, दोनों में आपका डिफरेंट आईआरआर है. अगर एनपीवी है तो उससे पिक कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप देखते हैं. ऑलवेज चूज द प्रोजेक्ट विद हायर आईआरआर. ठीक है, चूज द प्रोजेक्ट विद हायर एनपीवी अज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नोन. ठीक है, ये हो जाएगा. सेलेक्ट द प्रोजेक्ट विद द शॉर्टर पेबैक पीरियड. नो, सो ऑप्शन बी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन. करेक्ट है. ठीक है, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट द एनपीवी मेथड इज प्रिफर्ड बिकॉज it directly measures the increase in firm value. A higher IRR does not always mean a better investment, especially in if the NPV is lower or in negative. ठीक है, तो NPV is the game changer in that case also. ठीक है, तो जैसे IRR का इस्तेमाल कैसे होगा. So initial investment, let's say it is 5 lakh. ठीक है, incremental increase per year is 2 lakh and placement value is 45,270. Life of the asset is 3 years and IRR we are assuming 3%. ठीक है, so आपका सेम कैश फ्लोज हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड देन द टोटल ऑफ द column discounted cash flow approximately sum to zero of your NPV. So hence it is the best return is of the investment. The cost of capital of the company is 10% and your IRR was 13% or something. ठीक है, तो जिससे हम लोग आपका we generally reach to the conclusions. ठीक है, तो ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं. आप प्लीज कॉन्सेप्ट क्लासेस को रेफर कीजिएगा. स्टिल आई एम सेइंग कि एनपीवी सबसे इंपॉर्टेंट है. आईआरआर एंड पेबैक पीरियड का जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल आइडियाज हैं उनको आप लोग ध्यान रखें, वो आपको हेल्प करेगा. ठीक है, एंड दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस यूनिट दिस सेशन आल्सो. ठीक है, दिस पर्टिकुलर सेशन इटसेल्फ. ठीक है, सो पेबैक method is best suited for companies that prioritize maximizing long-term shareholders value. No, quick recovery of investment to reduce liquidity risk, evaluating project based on time value of money. No, selecting project highest. No. तो आपका ये क्या है, जैसे like let's say if we are investing 10 crore rupees today, how long it will take to recover this particular value. कितने समय में मुझे 10 करोड़ रुपए वापस हो जाएगा, उसके बाद का टाइम मेरा प्रॉफिट का होगा. बट उसके बाद क्या होगा, दैट इज नॉट गेट डिसाइडेड बाय द पेबैक पीरियड. ठीक है, ये आपको ये नहीं बताएगा उसके बाद की जर्नी. ठीक है, ये आपको सिर्फ इतना बताएगा कि लाइक विद इन हाउ मेनी इयर्स यू आर रिकवरिंग दैट ओवरऑल आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो पेबैक इट इज नॉन डिस्काउंटेड बेस्ड. ठीक है, सो पेबैक पीरियड मेथड मेजर हाउ क्विकली एन इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड. It particularly useful for firm that face liquidity constraint and prioritizing rapid capital recovery over long-term profitability. Next one. What is the major limitation of payback period? So it consider the time value of money. No. It ignore cash flow after payback period. बिल्कुल सही, इस पर हमने बहुत डिस्कशन भी किया है. ठीक है, so B will be right answer. ठीक है, so payback period focus only on time required to recover the initial investment, but ignore all cash flows occurring after that particular period. This make the unsuitable for the evaluating long term profitability. ठीक है, तो ये आपका जैसे ये हमने डिस्कस भी किया था ड्यूरिंग योर फंडामेंटल क्लासेस. ठीक है, सो पेबैक पीरियड इज इक्वल टू अमाउंट टू बी इनिशियली इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एनुअल नेट कैश फ्लो फॉर द पीरियड. ठीक है, तो उससे हम लोग आपका लाइक कितने साल में, जैसे 5 साल का प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, आपका हर साल 2 करोड़ रुपए आपका इनफ्लो का उम्मीद है. ठीक है, दैट योर एस्टिमेटेड एनुअल कैश इनफ्लो इज 2 करोड़. सो 5 साल का प्रोजेक्ट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, सॉरी आपका 10 करोड़ इन्वेस्ट है तो 5 साल 5 ईयर इट विल टेक टू रिकवर दैट पर्टिकुलर वन. सो योर पेबैक पीरियड विल बी 5 years. ठीक है, इफ अ कंपनी हैज टू mutually exclusive project with different payback period, which decision rule apply? ठीक है, select the project with the shorter payback period, select the project with higher, again आपका NPV, if you have that tool, so obviously you will go with the NPV one. ठीक है, otherwise shorter period आपका जो आपको रहेगा, but overall आपका NPV is the major one. ठीक है, जैसे हमने किया था, let's say we have invested 20 lakh rupees and this was like inflow आपका 3,50,000 per year. So it will take this much of time to recover your initial cost. जो आपने पैसा इसमें, ये जो 20 करोड़ रुपए 20 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया,
So you'll get back, if your like annual average return is 3,50,000, so it will get 7.51 years to recover your initial cost. ठीक है, उसके बाद का क्या होगा, payback period will not let you know. ठीक है, but NPV will help you out till your end of the project overall. So which of the following is key feature of term loan? ठीक है, टर्म लोन क्या होता है आपका, इट इज लोन टेकन बाय द कंपनीज फॉर अ फिक्स पीरियड. ठीक है, सो यूजुअली इट इज फॉर लॉन्गर पीरियड. ठीक है, सो इट इज पेबल ऑन डिमांड. नो, इट हैज अ फिक्स रीपेमेंट शेड्यूल ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड. ठीक है, सो इट इज वेरी सिंपल. ठीक है, आप लोग इसमें डील करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा. हाउ डज द टेन्योर ऑफ टर्म लोन इम्पैक्ट द इंटरेस्ट? तो आपका जितना ज्यादा होगा, ठीक है, टर्म लोन का जो पीरियड होगा वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा, जितना कम होगा उतना कम इंटरेस्ट पे करेगा. सिंपल बैंकिंग. और लॉन्गर टेन्योर इंक्रीज द टोटल इंटरेस्ट पेड. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. ठीक है आपका. सो लॉन्गर टर्म टेन्योर रिजल्ट इन मोर इंटरेस्ट पेमेंट ओवर टाइम. इवन EMI इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज लोअर. ठीक है, सो बेसिकली जितना ज्यादा समय लेंगे उतना समय आपका बैंक आपसे ज्यादा चार्ज करने वाला है. What is the primary risk for lender in providing a long term loan? ठीक है, तो हो सकता है जैसे आपने किसी पर्सन को लॉन्ग टर्म लोन दिया, टर्म लोन दिया किसी कंपनी को. सो लेट्स से राइट नाउ देयर फाइनेंशियल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस. ठीक है, उनका जो फाइनेंशियल हेल्थ इज इक्वल टू योर क्रेडिट स्कोर. ठीक है, तो अभी उनका जो क्रेडिट स्कोर है आपका सही है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्रेडिट स्कोरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी ड्यू टू द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ऑल. ठीक है, अभी मतलब विजय माल्या सर का एक बार सब कुछ सही था, आज के डेट में सब कुछ सही नहीं है. इवन द सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव. ठीक है, सो फ्लक्चुएशन इन करेंसी नहीं, हाई रीपेमेंट नो, डिफॉल्ट रिस्क ड्यू टू बोरोवर्स इनएबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म आपका, तो उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो आपका वीक होने के चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी आपका है. ठीक है, सो दिस इज द वन. ठीक है, so the primary risk in a long-term loan is default risk, as a borrower may fail to generate enough cash flow over time to meet repayments obligation. Lender mitigate this risk by assessing the credit worthiness, collateral and financial ratios. Which of the following best describe the role of moratorium period? ठीक है, तो extended period आपका जो होता है. So it allow the borrower to delay repayments for a specified period after loan sanctioning. It increase the interest. It required the no. So option A only will be right answer. ठीक है, next one. In a syndicated loan क्या होता है आपका basically? We are generally like there is one bank called lead bank. ठीक है, so lead bank, let's say there is a project of 10,000 crores. ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है. We have to develop one airport or one entire smart city with this particular one. ठीक है, so if one bank will finance this particular project, or if this project got failed, so that bank will become insolvent. ठीक है, itself. ठीक है, तो आपका कस्टमर तो डूबेगा ही डूबेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो तो डूबेगी डूबेगी, ये बैंक को भी डूबेगा. ठीक है, तो ऐसे उनके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? वी हैव syndicated loan option. So where let's say bank A is working as a lead bank. So let's say out of this 10,000 crore, 5,000 crore rupees is contributed by lead bank. Remaining 5,000 crore, this lead bank will arrange through other bank like C, D, E and others. Okay. This arrangement is generally done by lead bank itself. Okay? So only providing small portion of the total amount. Question kya tha, which of the following role typically performed by the lead bank? So they have major contribution, structuring the loan, negotiating term and coordinating between lender and borrowers, acting as a guarantor, no, ensuring lenders contribute and no. So option B will be right answer for this one. Okay? So these are the major functions which are generally performed by the lead bank itself. Which of the following is key advantages of loan syndication for a borrower? So the borrower has negotiated separately with each lender. No, it provides access to a larger loan amount while reducing reliance on the single lenders. It provides access to larger loan amount while reducing the reliance on single lender. Borrower, so option B is the right answer for this particular one. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following investment appraisal method does not consider the time value of money? ठीक है, तो इनमें से time value of money कौन consider नहीं करता है?
payback period आपका, ठीक है, we have discussed this one, ठीक है, rest these are based on discounting factors. That means like these three methods are generally based on discounting factors, ठीक है, time value of money, IRR and profitability index, but this payback period is not based on the time value of money, ठीक है. Next one, a project require an initial investment of 5 lakh and expected generate 1,50,000 per years for 5 years. If the firm required rate of return is 10%, which method will provide more accurate decision? कौन सा बताएगा? आपका NPV method, ठीक है, net present value method. So we will use net present value method to estimate the project or to appraisal the project itself, ठीक है. Next one, if two mutually exclusive projects have different ranking under NPV and IRR, विच डिसीजन शुड बी फॉलो, ठीक है. एनपीवी के हिसाब से आपका लेट्स से एक्सेप्ट है और आईआरआर के हिसाब से रिजेक्ट है, वी विल फॉलो एनपीवी, ठीक है. तो आपका ऑलवेज सेलेक्ट प्रोजेक्ट विद हायर आईआरआर, नो हायर एनपीवी, ठीक है. सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑलवेज सेलेक्ट द प्रोजेक्ट विद द हायर एनपीवी, ठीक है. सो एनपीवी इज मोर एक्यूरेट देन योर आईआरआर एंड पेबैक पीरियड, ठीक है. When pursuing goal of maximizing wealth, the company's wealth is determined by company's wealth, present value of all present value. देखो ये प्रोजेक्ट का नहीं है, कंपनी का है. ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू, हाँ. सो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट. वेल्थ की बात हो रही, कंपनी से रिलेटेड, ठीक है. So present value of all anticipated future profit is the right response to wealth maximization, ठीक है. So this is it guys. तो ये एक और बहुत ही important आपका unit which we done. I hope you get these particular thing clearly. एक बार दोबारा से आप लोग इनको देखिएगा and if you find any challenges, you'll definitely face challenge, ठीक है. अगर आप इसको दोबारा से देखेंगे या जो भी first time आपका देख रहे हैं जिन्होंने concept नहीं देखा होगा, so what will be my suggestion? First watch that concept video, then come to this unit wise MCQ, then I'll provide you a set of questions also, so practice to those particular one, and if you are still facing some difficulties and doubts, so you can connect me over there, ठीक है. बहुत important है. In JIB you'll get 2 to 3 marks downside, and in CIB it is like 4 to 5 marks case studies which are generally led by cost of capital structure, cost of capital and your capital investment decisions, okay. So hope this is clear to all of you guys. कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट्स के थ्रू. If you like the session, please do share with your friends also, so they can also take advantages of these particular classes. So now I'll see you tomorrow at same time with our next unit, which is lease finance. Again, very important one. So we will practice each and every subtopic of that particular unit also, and we'll try to build our understanding. So this is it. Bye bye. Take care all, and have a nice day. Thank you.